get her to speak Bengali. It was fun for me because, you know, Hindi is something that everyone would make fun of when a Bengali speaks that. So she did those two songs, and she could understand that I was trying to, you know, get everything right, the pronunciation stuff. It was her idea. She was gracious to say that अब इतना मेहनत कर रहे हो तो एक डुएट गाना बनाओ हिंदी में, उसमें कुछ अच्छा हो सकता है, ये तो सिर्फ बंगाली लोग सुनेंगे. ऐसा, this was something that she really felt, and that's how it actually ignited, it started. And I would say that the most challenging part was to find a concept in which we can make the song, because a regular song, duet song with Hemaji wouldn't be interesting. So I tried to think about a concept, and that's how it all happened. But nothing would have happened without the elan and the composure and the, you know, I mean, you could never understand, you can never think of a dream girl being so no tantrum. Trust me, it was an absolute pleasure, and it wouldn't have happened without her. That's all. That's the story. जब रीटेक्स की बात आती थी तब क्या होता था? ये हमारी एक टेक और कुछ उस पर आसानी से काम हो जाता था, या उस केमिस्ट्री को बनाने में थोड़ा वक्त लगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम हेमा जी आपके साथ गाना गा रही थी. ये जो है हेमा जी बताएंगे. अच्छा, इतना देर मेरे बात करना ठीक नहीं है हेमा जी. हाँ. Good evening, friends. Warm welcome to all of you. First, I would like to thank especially first Babul Supriyo, Sanjeev Goenka, and the Sarigama Music Company for giving me this wonderful opportunity to sing. So today I'm here in front of you in a totally different group, right? So it's all because of you. This is all rehearsed. I told her कि कम से कम मेरी थोड़ी तारीफ कर देना. So thank you so much हेमा जी. As he said, जो इन्होंने बताया, तो वो सब everybody knows about it now. But what I will say is he is a very tough music master. He made me sing the way he wanted. I used to get tired. I said, "Na, aaj jaane dijiye, baad mein karenge." But he will see that I have to sing the whole thing as he wanted. So that is what I did. But I was very excited singing those two Bengali songs, जिसका accent वगैरह सब correction कराया. Though I had sung long back with Kishore Da, it was a great opportunity for me, which I did not realize at that time. But today I value it so much. And अभी उसी सुर में गाने को कोशिश किया तो नहीं हुआ, तो मुझे मेरा सुर थोड़ा सा नीचे उतारना पड़ा. To which he was not agreeable. No, you have to sing in that. I said, I can't. Then, you know, as you grow older, I think आवाज़ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है. And then I tried my best, and then I think it is quite good. That's why music company is releasing it. Otherwise, I don't think we will all be here today. And thanks to Babul for making this such a big occasion, which I never thought. I've been a dancer, actress. In various occasions, I had been in front of you all. But today, I really can't believe that as a singer, I'm in front of you, which is, I never thought of it. हेमा जी, just want to thank Jaya ji and Ramesh ji. It's been that's the surprise for us. That's really a big round of applause for Didi and Ramesh ji. That was a big surprise for us. अजय सिप्पी साहब यहाँ बैठे हैं तो मुझे वो डायलॉग याद आ गया. आपने कहा कि भाई एक्टिंग भी करी, डांस भी आप कर रही हैं, फिल्म्स भी डायरेक्ट करी, सीरियल भी डायरेक्ट किया, और गब्बर होता तो पूछता जरूर कौन चक्की का आटा खाते हो. क्योंकि ये सीक्रेट क्या है, कैसे इतनी सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, पब्लिक लाइफ भी आप मैनेज कर रही हैं, तो ये किस तरह से हो पाता है? The life is so beautiful to live. God gives so many gifts as an opportunity. Only thing, we had to open the door and grab the opportunity. That's what I did. You have to reinvent yourself. I came as a dancer, then became an actress, then wanted to make a film, produce it. Then I thought, why not I direct it? क्योंकि इतने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने के बाद थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही जाता है. So I was able to do, I think, fairly well, not bad. But somehow I could not continue that. Then, of course, singing is, because we have been giving lip movement to so many songs, तो गाना गाते हैं, लेकिन ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गाना गाऊंगी माइक के सामने. जो फिल्मों में थोड़ा बहुत
कुछ गाने के लिए कहा था, गुलजार साहब ने एक दो लाइन गा लिया, कल्याण जी आनंद जी के साथ भी एक दूसरा एक गाना गाया था, हाँ, या दैट चंद्रमुखी एंड उसका था. एंड देन मैं क्या करती थी, मैं व्हेन आई डू माई प्रेयर इन माई हाउस इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज रिसाइट लॉट ऑफ संस्कृत श्लोकास. बहुत लाउड मैं बोलती हूँ, गाती हूँ, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है. मैं अपने आप में मस्त होकर मैं गाना, एंड दैट टू इट इज़ सौंदर्य लहरी करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रंथ है बाय आदि शंकराचार्य, उसको मैंने गाया था, घर में गाती थी. फिर मुझे मन में आया कि व्हाई नॉट आई मेक इट एज अ श्लोक कर लेंगे, और आई कॉल्ड आसिफ देसाई जी, ए वेरी बिग म्यूज़िक डायरेक्टर. तो उनके साथ मिलकर मैंने उसको, उन्होंने थोड़ा बहुत गाने के लिए कहा था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं गा सकती हूँ. एक लिटिल इंस्पिरेशन केम कि आई थिंक आई कैन सिंग, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट श्लोकास. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग इन संस्कृत, बट आई ट्राइड एंड आई थिंक आई डिड क्वाइट ओके इन दैट. वो रिलीज़ हुआ, उसके बाद मेरी मुलाकात इनसे हुई. सी हाउ द अपॉर्चुनिटी कीप्स कमिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो इनसे मिली थी, तो इन्होंने कहा कि आप ये गाने के लिए कहा, तो हम लोग गए थे कलकत्ता में, जाकर उसका रिकॉर्डिंग किया. रिमेंबर 2 दिन. Remember everything. I just see. I had a very small cue when she used to dub. Na, I really used to pester her because I knew that it's Dream Girl singing. So there is going to be a lot of expectation. So every line needed to be perfect. And she said, "Life is beautiful, so beautiful." I mean, it's so easy for someone to say this when you are yourself so beautiful. So the song needed to be really, really beautiful. The only cue that I really followed was that whenever she said something in South Indian, she had an attendant. हाँ बाबू एक और ले लीजिए. बीच में अगर कभी उन्होंने साउथ इंडियन में कुछ बोल दिया ना वो अटेंडेंट को, तो मुझे लगता था कि अब टुडे का आज का एंड यहीं पे होना चाहिए. सो आई टू टेक दैट क्यू. कुछ बोला उन्होंने साउथ इंडियन में दरवाजे के पास, हम तो हिमा जी आज इतना रहने दीजिए, अगले दिन फिर मिलेंगे. दैट वाज ओनली स्मॉल क्यू. दिस इज द फर्स्ट टाइम साउथ इंडियन लैंग्वेज अपीयर्ड वेरी इजी टू मी. आई मीन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्यू वाज. बाबूदा, कुछ सवाल जो हैं हमारे मीडिया के मित्र हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं. उससे पहले विक्रम साहब, एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं चाहता हूँ आप उससे निपटा लें. मुझे लगता है ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं, आप प्लीज़ उसे निपटा लें. और द हाउस इज़ ओपन फॉर द मीडिया इन केस यू हैव गॉट क्वेश्चंस टू हेमा जी एंड बाबुलदा, प्लीज़. Hi, Hema ji and Babul ji over here to your left over here. Firstly, I would like to congratulate you people for coming up with such an enchanting, I'm going to say this album. My question is to Mr. Babul ji. Since Hema ji, she is the dream girl and definitely she is the eternal dream girl. And यहाँ पे सिप्पी साहब भी जो है उन्होंने कहा कि जो है वो शोले जो है मूवी दोबारा नहीं बना सकते. तो was it like जैसा उन्होंने कहा शोले दोबारा मूवी नहीं बन सकती, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपका एल्बम है, सो ये हेमा जी का दिस ड्रीम गर्ल का हैंगओवर है कि ये आप एल्बम बना सके हैं कि, और व्हाट लाइक हाउ डिड ऑल दिस हैपन? सर, कीप द क्वेश्चन एज शॉर्ट एज पॉसिबल. या और हर आदमी अगर कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करें तो अच्छा है, मतलब ऑलरेडी. हाँ, सो द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. सी, आप इतना कुछ सोचेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू गेट completely intimidated by the fact that there is dream girl on the other side of the class. So the thing is that when you're inside the studio, I just tried to concentrate on the job in hand. I had to keep in mind that it's her, she has certain expectations from the song, so the song has to sound nice. I mean, and she's not an intimidating person, or the dream girl tag or that Hema Malini tag does not come to attack you at all. She's one real present personality, and I think that made everything so very much more easier. Can we have the next question, please? हेमा जी, दिस इज रवि. एक सवाल पूछना चाहूँगा. इसमें एक लाइन है, बिग बी से लेके पाजी, ये लाइन के बारे में मतलब कुछ जानना चाहेंगे, और आपका गाना सुनने के बाद धर्म जी ने क्या कहा, उनका रिएक्शन क्या था, ये भी जानना चाहूँगा. वो रिएक्शन धर्म जी से हम ले लें. आप सबका रिएक्शन अभी देखेंगे ना, अभी डायरेक्ट देखेंगे. और ये गाने का पूरा आइडिया इनका है. बाबुल जी ने कैसा उसको सोचा और बनाया, आई डोंट नो. ही गेव मी द लाइन्स टू सिंग, आई सैंग. आई एम नॉट ए ग्रेट सिंगर, बड़ी ऐसा कुछ नहीं हो, ये कोशिश है. आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट. लेकिन एक कलाकार होने की वजह से सब कुछ करने की एक इच्छा होती है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. एक क्यूरियोसिटी बहुत रहता है. उस ढंग से मैंने गाया है, तो आई थिंक ही हैज़ अप्रूव्ड वॉट एवर आई हैव सॉन्ग. बट ही इज़ वेरी टफ मास्टर, दैट मच आई नो. ये शिकायत है कि तारीफ है? शिकायत भी और तारीफ दोनों हैं इनसे.
हेमा जी आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है अगर बता सके आप? मेरे फेवरेट सिंगर्स? लता मंगेशकर जी. We move to the next question, please. एक को थोड़ा किशोर कुमार का नाम भी ले लेते हैं, बट थोड़ा गुस्से में है कि उस वक्त उनको गाना गवाया था, ऐसे उनके मम्मी को समझा के, तो अदरवाइज किशोर कुमार भी इन्होंने बताया कि बहुत फेवरेट है. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.